Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Beta, today we will start chapter number 7. That is, if you believe you can, you will. Beta, if you believe that you can do any work, then you will do. Okay? So before starting the chapter, firstly we will watch the video. Okay beta? So let's start. What is she saying? You are not taking part in the competition? I don't think I can make it. But you have been practicing for a whole month, dear. And you play so well. I have never heard anyone play guitar as good as you do. You think so? I know so. Let me tell you a story of a boy, Jack, who did what nobody thought he could do. Once there were two boys, Jack and Louis, who lived in a village near Oldenburg. Jack was 6 years old, while Louis was 10. They were very close friends and spent most of their time together. One day, as an adventure, they went a little too far away from the village. And while they were running around and exploring, Louis fell into a well. He started screaming because he didn't know how to swim and thought he would drown and die. Jack panicked and looked around for help, but there was no one to help them. Then suddenly he saw a bucket tied to a rope lying nearby. Without wasting any time, Jack threw the bucket into the well and asked Louis to hold it. Louis held the bucket. Jack started pulling up the rope. He kept pulling and pulling until Louis was out of the well. They were happy and cheering each other and ran quickly towards their home. When they told their families and the villagers about the event, nobody believed them because Jack was too young and weak to even lift a bucket full of water. Hence, nobody believed that he could have pulled out Louis from the well. But only Uncle Peter believed them. Uncle Peter was an old and experienced man whom the villagers took seriously. So they asked him how could this be possible. Uncle Peter laughed and said, "What is there to explain? The boy is already telling you how he did it. He threw the bucket inside and pulled the rope to save his friend. What is strange here is how did he manage to gather so much strength? This was because at that time there was nobody to tell him that he couldn't do it. Even he himself was not in a position to think so." He added, "The only one who can empower you is yourself. In fact, you can do it if you think you can't do it." The villagers realized then how important it is to believe in yourself. Do you now believe you can? Yes. I can, Grandma. Now beta, you will understand that if you believe, बेटा यदि तुम विश्वास है कि यू कैन डू एनी वर्क, आप कोई भी काम कर सकते हो, यस, देन यू विल. अगर आप विश्वास करो कि यू विल कम इन द फर्स्ट इन द क्लास, तो आप फर्स्ट आओगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. डॉक्टर APJ Abdul Kalam, the 11th president of India, was born on 15 October 1931 in a small village in Rameshwaram in Tamil Nadu. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के,
वो 15 अक्टूबर 1931 को बोर्न हुए थे, पैदा हुए थे। कहाँ पर पैदा हुए थे? इन ए स्मॉल विलेज इन रामेश्वरम इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वरम में पैदा हुए थे। हिज फादर वॉज ए पुअर बैटमैन विद सेवरल बोटमैन विद 7 चिल्ड्रन। तो उसके जो फादर थे, उनके जो फादर थे बहुत पूरा गरीब जो थे, बोट चलाने वाले नाविक थे, जिनके कितने बच्चे थे? 7। Now he had a great desire to give education to his children in order to have a better future. उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी डिज़ायर थी कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन दें, उनको और उनका बेटर फ्यूचर करें। सो एज ए स्कूल स्टूडेंट डॉक्टर कलाम सोल्ड न्यूज़पेपर टू कंटिन्यूस एजुकेशन। बेटा आपको आपके पेरेंट्स कितनी चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं, फ़ोन अवेलेबल है, आप जो खाने के लिए कहे जो, लेकिन वो लोग जो लोग गरीब होते हैं बेटा उनको कुछ भी नहीं मिलता। तो जो डॉक्टर कलाम के बारे में बता रहे हैं वो क्या न्यूज़पेपर बेच के अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा उन्होंने। ही बिकेम ए ग्रेट साइंटिस्ट एंड वन मैनी अवार्ड्स लाइक पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न एंड मैनी अदर। और वो क्या है, एट लास्ट क्या है, वो ग्रेट साइंटिस्ट बने, वैज्ञानिक बने और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते, जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, मैनी अदर। हिज जर्नी ऑफ एक्सीलेंस डिड नॉट स्टॉप देयर। ही वॉज इलेक्टेड टू द हाइएस्ट पोस्ट दैट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनकी जो जर्नी थी एक्सीलेंस इस सब प्राप्त करने की, वो यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ कि वो साइंटिस्ट बन गए और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते। एट लास्ट वो क्या है, उन्होंने हाईएस्ट पोस्ट जो है इंडिया की वो चुने गए और वो क्या थी हाईएस्ट पोस्ट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो वो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर कलाम इज़ ए रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। डॉक्टर कलाम, लुक एट द पिक्चर बेटा, दैट इज़ द डॉक्टर कलाम। वो क्या है? रोल मॉडल है हमारे लिए, हम सब के लिए। लाइक हिम वी कैन आल्सो फुलफिल आवर ड्रीम्स विद हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। अगर हम हार्ड वर्क करें, ऑनेस्टी करें से रहे तो हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। There are many people in our country who do not understand the importance of education. बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो कि वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। They do not send their children to school. बेटा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं कि गरीब बच्चों को लोग वो हैं स्कूल में भेजते ही नहीं। वो कहते हैं कि बच्चे हैं चलो भीख मांगने के लिए भेज देते हैं या फिर घर में काम करने के लिए भेज देते हैं, तो वो उनको स्कूल नहीं भेजते। एज ए रिज़ल्ट मैनी चिल्ड्रन फोर्स टू अर्न मनी एट एन अर्ली एज। उनको फोर्स किया जाता है, उन पर दबाव डाला जाता है कि वो अर्ली छोटी सी एज में ही पैसा कमाए। व्हेन दे शुड बी गोइंग टू स्कूल, जब उनको स्कूल जाना होता है तो उसकी जगह वो क्या है, उनको फोर्स किया जाता है कि वो पैसे कमाएं। जैसे ढाबे में लगे होते हैं, घरों में भी लगे होते हैं छोटू, तो वो जो हैं क्या कहते हैं, वो क्या है, बहुत सारे उनको फोर्स किया जाता है कि काम करें। These poor children work in homes, dhabas, as well as the carpet weaving, bangle making, tanning, wool cleaning, gem polishing, lock making, brassware, slate, pencil, cement and soap making factory। तो ये पुअर चिल्ड्रन है, उनको या तो घरों में रखा जाता है, जैसे छोटू नहीं होते काम करते हैं, या फिर ढाबा में है, या फिर बैंगल मेकिंग की कंपनी फैक्ट्रियों में, जैसे वूल क्लीनिंग के लिए, मतलब इन सब कंपनियों में, फैक्ट्रियों में इनको काम करने के लिए मजबूर कर जाता है। और वहाँ पे क्या 7-7, 8-8 घंटे जो है उनको काम करने के लिए कहा जाता है। तो बेटा क्या आप तो बहुत लकी हो, आपको आपके पेरेंट्स जो हैं अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपको हर फैसिलिटीज़ आपकी पूरी कर रहे हैं। आपको बस क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। तो आप वो भी नहीं कर रहे ना ऑनलाइन क्लास के चक्कर में, तो आपको पढ़ना है। फर्स्टली आपका एम क्या है, आप अपना एम बनाओ कि मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे मार्क्स से क्लास पूरी करनी है, तो करोगे। बेटा देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको तो बिल्कुल एजुकेशन प्राप्त ही नहीं हो रही, तो आप जो है आपको मिल रही है, आपको फैसिलिटी मिल रही है, तो आप जो है अपना मन लगाकर पढ़ाई करो। ओके बेटा, आपने स्टोरी समझी? क्या स्टोरी समझी? कि अगर हम बिलीव करें, अगर हम विश्वास हो, हम सोचते ना हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, मुझे तो इंग्लिश आ ही नहीं सकती, मुझे तो मैथ आ ही नहीं सकते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सोचो नहीं मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो कर सकती हूँ, तो यू कैन डू। तो अगर आप बिलीव, तो आपको क्या है, सबसे पहले क्या अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, देन जो है आपको आप यू कैन अचीव एनीथिंग। आप कुछ भी चीज़ को है अपने अचीव
कर सकते हो. ओके बेटा, सो टुडे यू विल रीड द लेसन एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द लेसन वी विल रीड इट टुमारो. ओके बेटा, थैंक यू.